So, hello, my friends, welcome. So, in this class, we are going to see the GATE PYQ questions. So, we will see in respective of our database management system. So, we are going to see the questions which are asked in the GATE 2025, 2024, and few questions end of 2023. ठीक है, तो 2025, 2024 and 2023 we will see related to our only and only database management question. Each and every question I am going to solve. So there are some very high level of questions so which I have skipped. So that very high level questions we are going to see in the next video. But these questions which I am going to take here, so it is we can solve. So it is not very high level. So we can solve this question. Okay. So if you have any doubt or if you have any question, you can unmute and you can raise your hand and you can also ask. Yes, sure. So if you know the answer, so you can also raise, can say any question you are having. Okay. So meanwhile, you also solve and meanwhile, I will also explain for you. So this is easy question. Just you solve, then I will solve. Meanwhile, I will also solve. So what is happening in this question? So we are having three transactions, T1, T2, and T3. So it is reading some value. Let's suppose Ram is having an account and Sita is also having an account in any bank. Let's suppose SDFC. So they are having account in SDFC. So Ram is having, let's suppose, 100 rupees and Sita is having, let's suppose, 100 rupees. Okay. So initially you are going to read the value of X is equal to Ram and Y is equal to Sita. Okay. So you have read the value of Ram, it is 100. Then you have write the value of Sita. So let's suppose you have updated the value. Let's suppose this Sita value of 150. Okay. So now this T2, this is another transaction. Let's suppose you are doing here UPI payment. Here you are doing internet banking. Here you are doing, let's suppose, mobile banking. So T2 is reading the value of X. So it will read the value of X. It is 100. Okay. Now it is going to read the value of Y. So it is going to read 150. Okay. So this value is being written as 150. Now from your mobile banking, you have read another initiated, you have another transaction in which you have read 150 rupees. Okay. Now there is a abort. So the T1, it is being aborted. So once the aborted, it is going to roll back. It is going to roll back. So what it will do, it will revert 150 to again 100. So but what is the value it read by T2? T2 has read 150 and T3 also read 150. So which value doesn't exist in the database? इन्होंने वो वैल्यू रीड हो गई जो डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करती. So what are the case now you need to do? So you need to roll back. You need to roll back. Which transaction you need to roll back? Only T2? क्या सिर्फ हम T2 को roll back हम करेंगे या T3 को roll back करेंगे या T2 and T3 roll back or neither? Now you give the answer. I have explained the question. Now you can easily give the answer. Now it is clear to you. So you can also give the answer. What is the right answer for this question? Okay. So here we need to do the rollback. We need to do the rollback of T2 and T3 both because in the one जो data value exists की that value doesn't exist. Okay. C will be the right answer for this question. So this effect को हम क्या कहते हैं? Cascading rollback. इस effect को हम क्या कहते हैं? Cascading rollback. So this is important from exam point of view. Okay. Moving ahead, next question. देखो ये जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं सब आए हुए हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ. Sir, once again explain that first question. Yes, sure, I will explain. So see, this is the question that we are going to solve here. जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं सब मैंने यहीं से पिक किए हैं. ऐसा कुछ नहीं कि मैंने अपने आप से कुछ पिक किए.
So you want explanation of this question again, so I will explain again to you. See what is happening over here. We are having three transactions, T1, T2, and T3. Let's suppose T1 means you are doing a UPI payment, okay? And here you are doing some internet banking, and here you are doing some mobile banking. Okay? So at any time, you are going to read the value of X. You have read the value of X. Okay. Now this one represent who is doing the transaction. Now W1. Now it is going to write the value of Y. Let's suppose the value of Y is equal to, let's suppose 150 rupees. The account of Y is having the amount of 150. So you are going to write. So आपने कुछ भी write किया. Let's suppose you have updated this balance to 200 rupees. आपने यहाँ क्या किया? Addition of 50 rupees you have done. ठीक है? It is right. Now R2 of X. So you are doing the read operation of X. So X की जो original value थी आपने same value read की. Now R2 of Y. So you have read the value of Y. अब ये जो वैल्यू रीड करेगा, विच वैल्यू इज गोइंग टू रीड, ही इज गोइंग टू रीड द 200 वैल्यू. ये कौन सी वैल्यू करेगा? 200, विच इज बीइंग अपडेटेड बाय T1. यूपीआई में आपने कुछ भी वैल्यू अपडेट की थी, इज गोइंग टू रीड द अपडेटेड वैल्यू. नाउ R3 इज रीड ऑफ Y. सो R3 मींस T3. इसको कह सकते हो R1, इसको कह सकते हो R2, इसको कह सकते हो R3. So R3 is doing the read of Y. So what he is going to read? Again he will read 200. अब तक यहाँ पर ठीक है. अब इसने बोला कि जो T1 है वो कह रहा है कि मैं अबॉर्ट करूं. सो इट इज सेइंग दैट अबॉर्ट, आई वांट टू डू द अबॉर्ट. तो जैसे ही अबॉर्ट हो जाएगा, तो ये जो इसने जो जो ऑपरेशन किए वो सबके सब क्या होंगे सर? रोल बैक होंगे. रोल बैक मीन्स हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो वापस लेके आएंगे. इसका मतलब 200 की जगह हम वापस 150 लेके आएंगे. अब जब ये वापस ओरिजिनल वैल्यू आ गई, इसने जो जो चीजें की हमने वापस रिवर्ट चेंजेस कर दिए. इसके जो चेंजेस थे हमने रिवर्ट कर दिए. जैसे चेंजेस रिवर्ट किए, अब मुझे बताओ इसने जो वैल्यू रीड की थी, क्या ये डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है? या 200 कहीं पे एग्जिस्ट करता है? नहीं सर. इसने जो वैल्यू रीड की है वो ऑलरेडी अबॉर्टेड हो चुकी है. सो इसका मतलब इसने फॉल्स इंफॉर्मेशन इसके पास है. इसने जो अभी रीड किया है तो वो भी क्या है? फॉल्स इंफॉर्मेशन किया है. लेट सपोज कि आगे जाके ये किसी को रुपए भेज देता है 200. आपने इंटरनेट बैंकिंग में अकाउंट देखा 200 रुपए है. अब मान लो इसने सोचा कि मैं 200 में से 200 रुपए पूरे भेजना चाहता हूँ किसी दोस्त को, मान लो कि शाम को. अब बट एक्चुअल में क्या है, आपके पास 150 रुपीज, ये जो आपको जो रुपए दिखाता है वो ऑलरेडी रोल बैक हो चुका है जो यूपीआई से आपने पेमेंट किया था. इसका मतलब क्या है कि इसके साथ साथ कौन से और ट्रांजेक्शन है जिनको रोल बैक करने की आवश्यकता है. तो जो T2 और T3 है, इन दोनों को भी रोल बैक करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन रीड की है वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है. तो सी विल बी द राइट आंसर. ठीक है, इट इज क्लियर टू यू और शुड आई एक्सप्लेन अगेन? Yes, sir, clear. ये जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते. कुछ क्वेश्चंस हार्ड होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, बट कुछ क्वेश्चंस हल्के होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है रिगार्डिंग द बीट. ये रहा आपका क्वेश्चन. तो मैंने यहीं से ये क्वेश्चन को पिक किया है. ठीक है, तो ये वाले जो स्क्रीनशॉट इसको भी आप देख सकते हो. तो ये जो जितने भी आपके क्वेश्चन है सब ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं, गेट. तो इस वीडियो में 2025, 2024, 2023 को देखने वाले हैं. जैसे ये क्वेश्चन है तो यू जस्ट सॉल्व इट. ठीक है, सो आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन टू यू. कंसिडर अ बी ट्री. Okay, so we are having a B tree. Now in this B tree, we are having node is equal to most 3 key value. It means every node can hold the value m minus 1 is equal to 3. So it can hold only 3 value at a most. ठीक है, इसकी ये लिमिट है. The value 23 is now inserted into B tree. Which of the following option is correct? So when I'm going to insert the value 23, so 23 is going to insert over here. So what is going to happen? So it is going to split. It is going to split. यहाँ क्या हो गया सर? स्प्लिट हो जाएगा. तो व्हाट इट विल डू? इट विल डू द स्प्लिट ऑपरेशन. तो जैसे ये स्प्लिट होगा तो व्हाट आर द थिंग्स गोइंग टू हैपन ओवर हियर? तो यहाँ क्या होगा? आपके एक और नोड यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा. सो वी आर गोइंग टू इंसर्ट अनदर नोड ओवर हियर. तो इससे होगा क्या?
तो इससे क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, इससे क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। बट इससे क्या होगा, आपके नोड इंक्रीज हो जाएंगे, नहीं सर, नोड्स तो आपके सेम ही रहेंगे, द टोटल नंबर ऑफ नोड विल बी द सेम, nodes are not going to get any kind of effect. So C will be the right answer for this question. And height will be the same. Height जो आपके increase नहीं होगी इस case. Okay. Next question. Consider two relation teams TID and TNAME, plates PID, PNAME, TID. मतलब एक टेबल है में आपका आईडी है और नेम, इसको हमने कह दिया टी टेबल। एक और टेबल है, इसमें आईडी है, इसमें नेम है और इसमें टीआईडी। टीआईडी मतलब ये जो टीआईडी ये यहाँ पे यूज हुई, इसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन की, इसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन की। इसको हमने कह दिया पीटी। अब यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। विच टपल रिलेशन कैलकुलस क्वेरी रिटर्न द नेम ऑफ द प्लेयर्स हु प्ले फॉर द टीम हैविंग द टी नेम इज इक्वल टू M1। जो टी नेम है विच इज हैविंग द M1, so this is team, this players। now M1, but from here we need the name of players। so ये जो मेरा p टेबल है, यहाँ से मुझे यहाँ क्या चाहिए, p नेम चाहिए। so p डॉट p नेम, p डॉट p नेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, ये भी राइट, ये भी राइट, ये भी राइट, ये भी, ठीक है। from let's move ahead now। p name is from the which table, p name is from the player table, which table, player table, which table, player table। अब देखो where is the place table, player table है, यस है, प्ले टेबल है, नहीं, टीम आ गया तो इट इज इनकरेक्ट। प्ले टेबल है, ठीक है, प्ले टेबल, नो इट इज इनकरेक्ट। so we have eliminated two option, we are having A and C now। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि we need to apply the join। तो देखो यहाँ पे क्या है, we are combining the two table on which basis, on the basis of primary key and the foreign key। so we need to do the join ऑपरेशन। हमें अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे join लगाना पड़ेगा, we need to do the join ऑपरेशन। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में बताओ ज्वाइन कहां पे लग रहा है। जस्ट चेक इन विच ऑप्शन देयर इज अ ज्वाइन। इन ऑपरेशन ए में आपको ज्वाइन दिख रहा है, ऑप्शन सी में आपको ज्वाइन दिख रहा है। तो सर मुझे है ना सिर्फ ऑपरेशन ए में ज्वाइन दिख रहा है, पी डॉट टी आई डी इज इक्वल टू टी डॉट टी आई डी। तो सिर्फ मेरे को ज्वाइन यहीं पे दिख रहा है। सो बाय ऑप्शन एलिमिनेशन आई कैन से ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, if you need explanation just unmute, I will explain again। moving ahead, this question you can solve, this question is easy, you can do it। Explanation the symbols change। Okay, sure, in the end I will explain। उसमें आपका होता है क्या है, मेनली आपका जैसे आप यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहे हो, ऑपरेशन लग रहा है, जॉइन लग रहा है, फिर आपका सिलेक्शंस होता है, फिर आपका प्रोजेक्शंस होता है, ठीक है। तो इन द लास्ट आई विल एक्सप्लेन ऑल द सिंबल्स व्हिच वर यूज्ड इन द क्वेश्चन। नाउ इन दिस क्वेश्चन, तो वी आर हैविंग अ थिंग व्हिच इज गोइंग टू आइडेंटिफाई। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सर
नेम से सिटी आ रहा है और नेम से ओनर आ रहा है. नेम is determining the city and name is seeing the owner. So it means that primary key क्या है आपका? Name. So in this attribute, name is finding the city and name is finding the owner, we can say. Now this relationship. So any two attribute are there in a table which is known as BCNF. So it is a BCNF and there is a lossless join. There is a lossless join. तो यहाँ पे क्या है? T1 T2 आपका BCNF में है और आपका normalization. So DS. तो देखो इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको नॉर्मलाइजेशन आना चाहिए. First you need to learn the what is the normalization. Then only you are able to solve this question. Okay. Next question. एसक्यूएल क्वेरी है स्पोर्ट्स लीग की. यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा अच्छे से आपको दिखेगा. ये रहा. ये वाला तो अभी हो गया था ना क्वेश्चन, देख लो. ये रहा. ये तो अभी अपन ने देखा था ना. तो दिस इज द क्वेश्चन. इसका आपको आउटपुट बताना है बस. यू नीड टू से द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन. कुछ नहीं है. देर इज अ टेबल. बस आपका जॉइन है यहाँ. तो यू कैन टेक 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट. इट इज नथिंग. देर इज अ जॉइन ऑफ टेबल. देर इज अ प्ले टेबल, कोच टेबल, टीम टेबल एंड मेंबर टेबल. They are having some columns over there. Now I will explain also. So there is a inner query. यहाँ क्या हो रहा है? There is a inner query. तो inner query first we need to select. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वेट से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो अब यहाँ पे तो कौन कौन सी जो है टेबल यूज हो रही है? TCM, टीम, कोच, मेंबर. कोच वाली यूज हो रही है, टीम वाली यूज हो रही है एंड मेंबर टेबल यूज. सो ये जो तीन टेबल यूज हो रही है, इसमें क्या है? C.name इज इक्वल टू मार्क. जो सी है कोच टेबल, उसमें मार्क यूज हो रहा है. नेम कहाँ पे? ये रहा मार्क. तो विच इज बिंग यूज्ड. एंड टी डॉट सी आई डी इज इक्वल टू सी डॉट सी आई डी. टी की जो सी आई डी है, ये सी आई डी, दिस कॉलम इज इक्वल टू सी डॉट सी आई डी. ये जो सी आई डी से मैच हो रहा है 102. कहाँ कहाँ पे सर? 102 मुझे सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, ये वाला. इट मीन्स ये वाली रो. उसके बाद में एम डॉट टी आई डी इज इक्वल टू टी डॉट टी आई डी. एम डॉट टी आई डी, एम डॉट टी आई डी इज इक्वल टू टी डॉट टी आई डी. इट मीन्स 10. तो 10 कहाँ पे? एक 10 यहाँ पे है, एक 10 यहाँ पे. इट मीन्स ये दो रो मेरे निकल के आ. नाउ सेलेक्ट मीन पी डॉट एज फ्रॉम द पी टेबल. ठीक है. अब ये जो मेरे पास आई है पी आई डी इन, ये जो पी आई डी है ये यहां से निकल के है. सो इस टेबल से मेरे को क्या मिला? 1 और 3. तो 1 और 3 कहाँ पे? 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे. इट मीन्स ये एज निकल के है 31 एंड 26. तो सेलेक्ट मीन डॉट एज. इट मीन्स 31 और 26 में कौन सी मिनिमम एज है? इसमें कौन सा मिनिमम है? 26 इज द मिनिमम एज ओवर हियर. तो ऑप्शन आपका आ जाएगा क्या? 26. ठीक है. ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Any explanation is still? What is primary key? What is foreign key? Okay, sure. I will do the revision. We will do the revision also. So here the answer will be the 26. Okay. If you need explanation of this question, I will explain again. So next question.
दिस क्वेश्चन यू कैन इजीली आंसर, ये इजी क्वेश्चन है, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते, यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आइसोलेशन. अंकित कह रहे हैं ए. नहीं अंकित, इट इज आइसोलेशन. ये देखो वाई आइसोलेशन, बिकॉज यहाँ पे जो आपकी बात हो रही है मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स की हुई, तो इट मीन्स वी आर हैविंग टू ट्रांजेक्शन T1 and T2, and they should execute simultaneously, they should execute simultaneously. तो आइसोलेशन मतलब क्या होता है? मल्टी थ्रेडिंग, वी कैन से मल्टी थ्रेडिंग. So it means multiple transactions can occur in a database without affecting any other database also. So this is known as isolation. अगर single होता है यहाँ पे, then you can take the atomicity. If there is a single, then you can take the atomicity. But when there is a multiple, we need to go for the isolation. Okay. Although you are also right, but here the question is more about the multiple transactions. Okay. Next question. FD से आपको given है function dependencies. So I will also explain. एक रिलेशन है ABCD. A से D आ रहा है और A से B आ रहा है और C से A आ रहा है. तो here I am unable to identify any primary key. यहाँ पे क्या है सर? प्राइमरी की जो है वो मिसिंग है. वो क्या है सर? मिसिंग है. वाई? बिकॉज ए से आई कैन आइडेंटिफाई ए बी, बस ए से सिर्फ ए बी आ रहा और कुछ नहीं आ रहा. सी से आई कैन आइडेंटिफाई ए, एंड ए से आइडेंटिफाई बी, एंड बी से आइडेंटिफाई डी. यहाँ पे ये जो सी है, सी से आई कैन, identify D, sir. तो सी कैन आइडेंटिफाई ए, and A can identify B, and B can identify D. Yes, C. So C is my key over here. So C is my key. C क्या key है. So what are my prime attribute? It is C. And what are the non-prime? It is A, B, D. So let's look at for R2. R2 किस में है? So this statement is saying that R2 is in 3NF. क्या ये जो statement given है R2 is in 3NF? No sir, no. 3NF में क्या होगा? देखो A से D क्या है? दोनों ही नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, दोनों ही आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है. तो R2 तो मेरा 3NF में बिल्कुल नहीं है. तो R2 ये नहीं है. R2 कहाँ है? ये रहा 3NF. नो, R2 इज नॉट इन 3NF. यस, दिस इज राइट. तो D इज राइट. ठीक है, D इज राइट. अच्छा, CD भी एक बार ऊपर वाला भी देख लेते हैं. CD देख लेते हैं. ए में भी देख, नहीं यहाँ पे भी नहीं हो, यहाँ पे भी आपका नहीं हो रहा. सो दिस इज ऑल्सो नॉट इन. तो CD इसका आंसर हो जाएगा. दोनों ही आपके 3NF के नहीं. ओके. यस. ओके. Moving ahead. See this, you need to understand this. I have already explained this in very detail in 3R class. So I have already taken a 3R class. In that I have already explained how we can find the functional dependency in very depth. तो कोई भी गेट का क्वेश्चंस भी आता है, इसरो का क्वेश्चन है, वो भी आप वीडियो देख के सॉल्व कर सकते हैं.
फिर से आपका आ गया क्वेश्चन, कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल रिलेटेड टू ट्रांजैक्शंस। आप भी एक सॉल्व करो, मैं भी एक सॉल्व करता हूँ। ठीक है? कोई भी एक एक ले लेते हैं यहाँ पे, मान लो कि सी देयर आर फोर, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व ऑल फोर, इट विल टेक सम टाइम। तो कोई भी एक उठा लेता हूँ मैं यहाँ से, मान लो कि ये डी उठा लो, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है? ये वाला मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे रीड है, राइट के बाद क्या है, यहाँ पे रीड है। इसका मतलब T2 से T1 मेरे यहाँ पे आ गया। और उसके बाद यहाँ पे क्या रहा है, एक सेकंड, कुछ गलती की है क्या मैंने? R2 ऑफ राइट एक्स एक्स। बस आपको ये देखना है क्या ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं। देखो यहाँ पे राइट है, उसके बाद में यहाँ पे रीड आ गया, सो T2 से T1 हो गया। देन यहाँ पे राइट, यहाँ पे तो शेड्यूल नहीं बन रहा, सो दिस इज नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो यहाँ पे जो आपका ये है, इट इज नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, सो आई कैन सी अ साइकिल ओवर हियर। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर, आई एम सीइंग अ साइकिल ओवर हियर, so it is not in a conflict serialism. So like this, you need to check each and every option. Next question है, ये आपका हो जाएगा solve. It is easy question. You can solve this question. So we are having three table: student and courses enrolled. Student table है, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं सर? रोल नंबर, नेम और एज और CGPA, like this. Which of the following option is correct SQL names for the student who have enrolled in the name of this? उसने बोला कि कौन सी SQL क्वेरी है जो आपको सही रिजल्ट लाके देगी, who have enrolled in the कोर्स नंबर 1470। इसका मतलब कोर्स कहाँ पे, ये कोर्स है, और कोर्स नंबर का है यहाँ पे। कुछ भी हो जाए, मुझे एसक्यूएल जो मेरी रहेगी क्वेरी, एसक्यूएल जो क्वेरी है उसमें मुझे क्या चीज देखनी है, व्हाट आर द थिंग दैट आई नीड टू लुक एट इमीडिएटली, आई नीड टू लुक एट कोर्स नंबर। So I have to look at the string which is written like this। ये वाली स्ट्रिंग मुझे ढूंढनी है। तो लेट्स लुक एट द ऑप्शन। यहाँ पे दिख रहा है कहीं, सर ये रहा। ठीक है, इसका मतलब ये सही है। वी विल डू द ऑप्शन एलिमिनेशन। इसमें दिख रहा है कोर्स नंबर, ये भी सही है। इसमें दिख रहा है, ये भी सही है। इसमें दिख रहा है, ये भी सही। तो ऑल फोर आर राइट। Let's look at the option, then we can identify more easily, because in the exam
आई एम हैविंग लेस टाइम, एबीटी। अब देखो ऑप्शन में मेरे को यहाँ पे ऑल नहीं दिखा है, ऑप्शन में मैंने देखा कि यार एक ऑप्शन मिसिंग, सो आई हैव टू लुक एट अगेन। देखो बहुत बार क्या होगा, सम टाइम क्या होगा कि ऑप्शन में मान लो कि उसने ऑप्शन में यहाँ पे जैसे कि आपका एनी क्वेश्चन ही हैज गिवन, मान लो कि इसने ऑप्शन में लिख दिया यहाँ पे सिर्फ ए, या आपका लिख दिया सी, सिर्फ ए लिख दिया। इससे मुझे ये पता लग जाएगा यार ए में कुछ स्पेशल बात है, आई नीड टू लुक व्हाट इज स्पेशल इन ए, व्हाई इज रिटन ओवर ऑप्शन दिस। नाउ अगेन आई हैव टू रीड एवरी क्वेरी, तो देर इज नो ऑप्शन एलिमिनेशन, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं है, आई हैव टू लुक एट एवरी क्वेरी। ये क्या होता है, इफ बताता है, एग्जिस्ट होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। एग्जिस्ट क्या करता है, ट्रू रिटर्न करता है। और ये क्या कर रहा है, ऑल कॉलम्स, जितने भी मेरे पास हैं ऑल कॉलम्स। ठीक है, ये तो ठीक लग रहा है। ये देखो साइज ऑफ, ये क्या है, इनकरेक्ट सिंटेक्स है, क्या है सर, सिंटेक्स एरर। और ये क्या है, सिंटेक्स एरर। तो दिस क्वेरी विल नॉट एग्जीक्यूट, ये क्या करेगी, दिस क्वेरी विल नॉट एग्जीक्यूट, इट विल गिव सम एरर। तो ऑप्शन बी क्या है, एरर देगा। अब मुझे ऑप्शन, वो ऑप्शन देखना है जिसमें ऑप्शन बी नहीं है। आई नीड टू लुक एट ऑप्शन, द ऑप्शन इन विच देयर इज नो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी किस में नहीं है सर, ऑप्शन बी इसमें है, तो इसको नहीं देखेंगे, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, इसका मतलब ये क्या, ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, सो आई विल टेक दिस ऑप्शन। तो दिस हाउ आई कैन सेव माई टाइम। तो इससे क्या होगा, मेरा एक टाइम भी सेव हो जाए, क्योंकि मैंने एक ऑप्शन को इनकरेक्ट आइडेंटिफाई आई हैव इजीली डन, सो हियर आई कैन डू विद द ऑप्शन एलिमिनेशन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेशन। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज हाई लेवल। ये जो क्वेश्चन है सर, ये हाई लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। सो आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन वेरी वेरी डिटेल टू यू, ठीक है। देखो आपके पास में क्या एक बी ट्री है, इन दैट फोर नोड्स, इसका मतलब फोर ऐसा बना लो, बॉक्स बना लो, उसमें क्या ऐसे चार बॉक्स है। इस वाले बॉक्स में क्या एम्प्टी है, ये क्या है सर, एम्प्टी है। ये बॉक्स क्या है, फुल है, ये बॉक्स क्या है, फुल है। सो कीज डेटा एंट्रीज वैल्यू इन द लीफ, ठीक है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमारे पास में तीन बॉक्स है, ए बॉक्स, बी बॉक्स, तीन बॉक्स, ठीक है। आप ऐसे बॉक्स बना लो। तो वी आर हैविंग थ्री नोड्स, ए नोड, बी नोड, सी नोड। ये कह रहा है कि ये जो मास्टिक वाला है, ये आपका एंट्रीज है लीफ के अंदर, ठीक है। अज्यूम that a pointer between k1 and k2 points to a subtree containing the k1 and k2 values that are in leaf created. The smallest key is copied into its parent. अब ये क्या, ये जो बी ट्री है, इसकी प्रॉपर्टी ये क्या कह रहा है कि जो स्मॉलेस्ट की है, जो सबसे स्मॉल होगा, वो क्या जाएगा, ऊपर चला जाएगा, किस में जाएगा, इन द पेरेंट। देखो कोई भी आपकी ट्री होती है, किस टाइप से होती है सर, ट्री ऐसी होती है ना आपकी ट्री। ये कह रहा है कि जो भी सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो ऊपर जाएगा, इसका मतलब सबसे ऊपर होगा क्या, स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। जो स्मॉलेस्ट है वो क्या जा रहेगा, वो ऊपर जाएगा। द स्मॉलेस्ट की इज कॉपीड टू इनटू इट्स पेरेंट, तो वो क्या करेंगे, स्मॉल जब भी ब्रेक होगा वी विल कॉपी। अ रिकॉर्ड 23 इज इंसर्टेड इन अ बी ट्री, हमने रिकॉर्ड 23 इंसर्ट किया। द स्मॉलेस्ट की वैल्यू व्हेन द पेरेंट लीव्स दैट कंटेन द 25, ओके। हमें वो वाला बॉक्स देखना है जिस बॉक्स में 25 वैल्यू। We need to look at a box or leaf or node, we can say, in which the 25 value is there. So what value we are going to insert, 23। कौन सी वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, 23। लेट्स इंसर्ट द वैल्यू 23। तो जो सी है उसमें अपन वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या है, 20, 22, 25, 26। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ 20,
22, 25, 26। क्या इंसर्ट कर रहे हैं? 23। 23 इंसर्ट कर दी। जैसे ही 23 इंसर्ट किया तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा मेरा 23। इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं। 20, 22, 25, 26 ये है मेरे। मैंने क्या इंसर्ट कर दिया यहाँ पे? आई हैव इंसर्टेड 23। तो जैसे 23 इंसर्ट कर दिया, जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। वाई? इसमें साफ साफ दिया है कि कोई भी नोड है, एवरी नोड कैन होल्ड एट मोस्ट 4 वैल्यूज। किसी भी नोड में 4 वैल्यू स्टोर हो सकती है। ये बॉक्स ऑलरेडी फुल था, मैंने फोर्सफुली हैव इंसर्टेड वन बॉक्स, सो इट इज गोइंग टू स्प्लिट। तो क्या होगा? स्प्लिट हो जाएगा इनटू 2 बॉक्स। इसको बोल दो आप L1, इस बॉक्स को कह दो L2। L1 में वैल्यू क्या है? 20 एंड 22। L2 में क्या है? 23, 25 एंड 26। आप ऐसे बोल सकते हो। सो हेयर यू कैन से लाइक दिस। ओके, नाउ व्हाट दिस इज सेइंग, दैट इसने क्या बोला? दैट अ लीफ इज गेटिंग द स्मॉलेस्ट की इज कॉपीड इनटू इट्स पेरेंट। जो स्मॉलेस्ट की है वो क्या होगा? उसका जो है पेरेंट उसमें जाएगा। इसका मतलब स्मॉलेस्ट की क्या है? इसमें L1 और L2 में ब्रेक हुआ है। ये जो 23 ये ऊपर जाएगा, इट विल गो टू इट्स पेरेंट। इसमें जाएगा इनटू इट्स पेरेंट। ना इसके ऊपर कौन सा नोड आता है? बी नोड, विच इज नोड अबाउ सी। बी नोड, बी में क्या है? 7, 19, 33, 44। क्या है? 7, 19 था क्या? 7, 19, 33, 44। 7, 19, 30, 44। अब ये जो 23 है ये यहां आ जाए, इट विल गो टू इट्स पेरेंट, बी नोड के अंदर आए। अब मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया 23, फोर्सफुली आई हैव इंसर्टेड। नाउ अगेन दिस प्रॉपर्टी ब्रेक। अब क्या होगा सर? ये जो प्रॉपर्टी ये क्या हो जाएगा? ब्रेक होगा। तो इट विल अगेन, लेट सपोज दिस इज B1 एंड लेट सपोज दिस इज B2। अब B1 और B2 हो गया क्या? ब्रेक हो गया। सो यहाँ पे क्या है? 7, 9 बोल सकते हो, और यहाँ पे आप कह सकते हो 23, 33 एंड 44। अब क्या होगा? यहाँ पे वैल्यू ब्रेक होगी। सॉरी, सो व्हाट विल हैपन हियर? नाउ द वैल्यू विल ब्रेक ओवर हियर। अब क्या होगा? वैल्यू ब्रेक होगी। अब इसमें देखो स्मॉलेस्ट क्या है? 23। अगेन इट विल गो टू इट्स पेरेंट, अगेन इट विल गो टू इट्स पेरेंट। नाउ ए नोड, ए नोड क्या है? 49, 77, 83। 49, 77, 83। अब ये जो 23 है ये यहाँ के इंसर्ट हो जाएगा। तो ये नोड क्या? फुल है। अब ये फुल हो गया। इनिशियली एक एम्प्टी था, यहाँ पे देखो देयर इज अ प्लेस ओवर हियर। ये क्या? एम्प्टी प्लेस। सो इट मींस वन नोड कैन फिट ओवर हियर। एक नोड आ सकता है। तो जैसे ये नोड आ गया स्प्लिट, ये फुल हो गया, स्प्लिट नहीं होगा। ये वाला जो नोड है ये स्प्लिट नहीं होगा। सो इट इज नॉट गोइंग टू स्प्लिट। व्हाई? नाउ इट इज फुल। अब लेट सपोज देयर इज वन मोर एंट्री, अगर यहाँ पे एक और एंट्री आएगा देन स्प्लिट होगा। अब स्प्लिट नहीं होगा। नाउ माई ट्री इज कंप्लीट। जो मेरा ट्री है वो कंप्लीट है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? पेरेंट लीफ ऑफ 25। जो 25 है उसकी जो पेरेंट लीफ है उसमें बताओ। तो 25 का है सर, या जो ऊपर वाला नोड है उसमें तो नहीं है। 25 का है? ये रहा। ये जो 25 है ये रहा। इसका जो पेरेंट नोड है उसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो आपको बतानी है। ठीक है? इसका जो पेरेंट नोड क्या है सर? ये रहा। इसका पेरेंट नोड क्या है? B2। B2 में अपने पास व्हाट वी हैव 23, 33, 43। बट जो 23 इट इज ऑलरेडी गॉन टू द मोर पेरेंट। नाउ वी हैव लेफ्ट विथ 33 एंड 44 इन B2। B2 में क्या है? 33, 44। नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग? स्मॉलेस्ट की, स्मॉलेस्ट की वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट की वैल्यू क्या इन दोनों में? 33। तो आंसर विल बी द 33। तो सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Okay, so is this question clear to you or you want one more explanation of this question? Okay, I will move ahead to the next question.
एटलीस्ट फुल, तो ये क्या प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी ओनली, प्रॉपर्टी ऑफ बी ट्री। दिस यू नीड टू रिमेम्बर। देखो, जिसने रूल है बनाया उसने क्या बनाया, प्रॉपर्टी बनाई, तो किस में एप्लीकेबल है, ये रूट नोड में एप्लीकेबल है। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बी ट्री। इफ यू रिमेम्बर द प्रॉपर्टी ऑफ बी ट्री देन यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अगेन इजी क्वेश्चन। फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं विच इज ट्रू। एक्स वाई, एक एक ऑप्शन देख लेते हैं। एक्स वाई, एक्स वाई से क्या निकल के आ रहा है, जेड डब्ल्यू। इट मीन्स आई कैन से दैट एक्स कैन फाइंड जेड एंड डब्ल्यू। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इन इस प्रॉपर्टी से क्या ये वाले चीज निकाल सकते हैं? नहीं सर, एक्स अलोन कैन नॉट फाइंड जेड एंड डब्ल्यू, सो दिस इज इनकरेक्ट। ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन में जा जाओ, ए जहां जहां उसको हटा दो। ए कहाँ पे, ए यहाँ पे है, ये हट जाएगा और नहीं हटेंगे। लेट्स लुक एट अदर ऑप्शंस। अब देखो अपने पास दो ऑप्शन बचते हैं, बी सी डी एंड डी। तो एक बार अपन डी देख लेते हैं, नहीं डी तो है, सब में है। सी देख लेते हैं ना, सी वाला देख लेते हैं। ये चलो बी देख लेते हैं, ठीक है, बी देख। एक्स वाई कैन फाइंड जेड एंड डब्ल्यू, तो कैन आई कंक्लूड दैट एक्स वाई कैन फाइंड जेड? Yes, I can conclude that if xy can together find z and w, then xy can find z also. Or I can say that xy can find w also. This is also right. So B option is right. B क्या है मेरा right है। तो B कहाँ पे, B ये right है। तो B यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, इसका मतलब B C D ये भी आपके ऑटोमेटिकली राइट है। एक बार देख लेते हैं, जैसे D ऑपरेशन देख लेते हैं। D कह रहा है x can find y and y can find z. This indicates that x can find z. Yes, this is called transitive property. This is called transitive property. So this is also right. So D is also right. It means B, C, D is the right answer for this question. Let's look at another question. 8 CSC 2024 का क्वेश्चन है। Consider the read write schedule X over 3 transaction T1, T2, T3, ठीक है। Which of transaction do you see? कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं T1, T2 and T3। Read of Z, read of Z, write of Z। R2, it means T2 is doing read of X. R3 is read of Y. R3, it is write of Y. R2, write of Y. Read of Y, na? Read of Y. Write of X. Write of Y. Now let's make the pair over. T1, T2, T3. लेट्स लुक एट, यहाँ पे क्या है, रीड ऑफ जेड। अब यहाँ पे जेड देखो और कहाँ कहाँ, यू नीड टू लुक एट जेड। इज जेड इज प्रेजेंट इन T2? जेड है नहीं, जेड है नहीं, जेड है नहीं, जेड है नहीं। लुक, so from T1 to T2 no problem. Let's look at T1 to T3. Now look at Z. Z no. So Z is no over, so this is right. ठीक है, कोई इशू नहीं है। Okay, let's move at next. Right of Z. So
और z है यहाँ पे, z नहीं, तो दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम. मूव फर्दर. दिस इज स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. रीड ऑफ x, यहाँ तक क्या है, रीड ऑफ x हो गया. ठीक है, रीड ऑफ x. नाउ लुक एट t1. अब यहाँ पे देखना, आप यहाँ पे भी देखना है, यहाँ पे भी देखना. सो इन t1 देर इज नो ट्रांजेक्शन. सो क्या है, एम्प्टी है, दिस इज एम्प्टी. नो प्रॉब्लम. नाउ लुक एट, इज x is there? No, there is no x. This is read operation. So read is not going to create any conflict. देखो, जो आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट पेयर होते हैं, रीड के बाद राइट कॉन्फ्लिक्ट पेयर होता है, नहीं होता. रीड के बाद आपका रीड ऑपरेशन होता है, दिस कॉन्फ्लिक्ट, नो. कॉन्फ्लिक्ट पेयर क्या होगा, राइट के बाद अगर रीड हो रहा है, अगर राइट के बाद अगर आपका राइट हो रहा है, दिस इज कॉन्फ्लिक्ट पेयर. ये क्या करेगा, कॉन्फ्लिक्ट पेयर करेगा. नाउ लुक एट दिस ऑपरेशन. T3 is doing the read of y and write. इसके बाद क्या रीड हो रहा है यहाँ पे, यस, यहाँ पे रीड हो रहा है. सो T3 is having T2. T3 के बाद ये राइट हो रहा है, इसके बाद ये रीड भी हो रहा है. सो T3 से T2 एरो बना. T3 कहाँ है, ये रहा, इससे T2 एरो बना. इट मीन्स whatever the operation we are going to do, so T3 is having a dependency on T2. तो T3 है which is having a dependency on T2. के बाद में कुछ नहीं है, इसके बाद सिर्फ एक ही एरो. सो यू कैन स्टार्ट विथ एनीथिंग. आप किसी से भी स्टार्ट आप कर सकते. बट आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि T3 के बाद T2 आना चाहिए. यू नीड टू लुक एट द ऑपरेशन कि T3 के बाद T2 आना चाहिए. बस आपको ये चीज ध्यान रखना. नाउ लुक एट द ट्रांजैक्शन. T3 के बाद T2 आ रहा है, नहीं, ये पहले आ गया, रॉन्ग. T3 के बाद T2 आ रहा है, यस. T3 के बाद T2 आ रहा है, यस. T3 के बाद T2 आ रहा है, यस. तो B C D इज राइट ऑपरेशन इन दिस. BCD कहां पे, ये रहा आपका BCD. तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. Hello, sir. Here, a conflict equivalent have some meaning here. Yes, In yes, transaction. yes. It is having a meaning. So the meaning is like that. What uh, when we see when we say a transaction is conflict equivalent when there is no cycle. There is no cycle present. So if there is no cycle, then we can say this transaction is equal to conflict equivalent. So what is the cycle? So let's suppose T1, T2, and T3. So I have said that read of x and write of x and write of x, read of y and write of y and read of y. Let's make the graph over here. T1, T2 and T3. So here read of x. Now look at write of x. So here we are having the write of x and here also we are having the write of x. Okay. So it can create a conflict. It can create a conflict because after reading this, someone is writing the operation. So T1 is having a T2 from T1 to T3 also. From T1 to T3 also there is a conflict. Let's remove this. इसको भी हटा दो. This is enough. Okay. Now this is write of x. Now look, any write of x or read of x is there here and there. Yes, write of x, then again write of x. So from T2 to T3 we will create a error. Okay. Now read of y. Now check any write of y is there. Let's suppose this is not given to you. Let's suppose this is not given to you. So till now this transaction is conflict equivalent. How we can say this conflict equivalent? How we can reduce this cycle? How we can remove this from the edges? So you can start with anything. So here T1 is having T2 and T3. So let's suppose I start with T1, and after that T1 I can start with T2.
So T1 is complete, T2 is complete, now T3 is also complete. So there is no cycle. So in this order of executions of transactions, in this order of the execution of the transaction, I can remove the cycle or any ambiguity in this operation. Now let's assume there is a one more transactions happen over here. One more, like we can say anything. So here, let's suppose we are having read of X again. So this is creating conflict. This is creating a conflict. So from T2 to T3. So T3 is T2. T3 is T2. This is cycle, right? So here you can see this is a cycle. So there is no way you can remove this cycle. If there is a cycle in your graph, if there is a cycle, so that transaction is always not conflict equivalent. So this transaction is not never be in conflict equivalent. So if there is a no cycle, then we can say this transaction is conflict equivalent. Okay. So we need to find a order. We need to find a order in which if I execute my transaction, how I can remove the ambiguity or dependency in my transactions. So like this, I need to make an order. So here, even the two transactions are given in a cycle, then also it can be considered as a No, conflict equivalent. no. If there is a, see this line, if no cycle, it means this is conflict equivalent. That's it. Okay. You need to remember only these two. No cycle means conflict equivalent. Okay, sir, got it. Now let's look at another question. This is easy peasy question. Easy question. Hai. So if your concept is clear about the normalization, you can solve the question. Option A is the right answer for this question. This question is easy. You can solve this question. Durability. So it is easy question. It is durability. So I don't think so. There is a requirement of explanation. So what is the meaning of durability here? It is mean that permanently storing of your data in the database so that you can also recover if there is any problem. So this is durability of my database. I can solve one more question over here. Next question. Now this question is from entity relationship model, ER diagram. Weak entity and strong. This is my strong entity and this is my weak entity.
तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी में क्या होगा? प्राइमरी एट्रीब्यूट। Weak entity must have a total participant in the relation identifying relation. Yes. एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि बैंक है, वी आर हैविंग बैंक। बैंक में क्या है? आपका मान लो सेविंग अकाउंट और लेट्स सपोज अकाउंट नंबर, अकाउंट होगा बैंक में, और यहाँ पे क्या है? लोन है। सो every account holder, it is not necessary is going to have a loan, but every loan is going to have a account number associate linked with that. Understand what I am trying to say, that every Yes, sir. loan is going to associate with an account number, but every account holder in a bank, let's suppose you are having account in HDFC or ICICI bank, so it is not mandatory for you to have a loan account, but every loan account in a HDFC is going to have an account linked with the HDFC. So this is the concept. तो एक ER diagram से always question, one question always asked in the examination from the ER diagram. Next question, which of the following file organization are efficient for the scan operation reduce? Sorted scanning, because this is efficient. Why? Because there is a order, because there is a order. So we are having increasing order or any specific order, so I can easily identify my scan. So whatever the value, instead of scanning the complete database from my order, I can quickly find the value which I am looking at. So this is sorted. So heap is also highly efficient. Heap is also highly efficient. Although it is not order, it is unordered, but it is highly efficient. So A and B, unclustered hash index, no, it is not efficient. Why? Because it is going to create every hash index for every value, and it will create a large page value or page size for me. So it will be very difficult for me to manage it. So A and B is the right answer for this question. Moving ahead, about the 2PL, about the two-phase locking. Which of the following statement about the 2PL is an R2? Two-phase locking. इसमें क्या है? दो फेज, देखो नाम में लिखा है टू फेज। तो इसमें क्या होता है? अपने दो फेज होते हैं। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक द ग्रांट्स ऑफ लॉक्स। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रोइंग फेज। फिर क्या होता है? रिलीज ऑफ लॉक्स। इसको हम क्या कहते हैं? इसको रिलीजिंग फेज या रिमूविंग लॉक्स और श्रिंकिंग समथिंग इज वर्ड देयर, आई एम अनेबल टू रिमेंबर। So we are having two phase. First is growing and another is releasing of locks. So there is a name. Releasing locks or shrinking something's name is there. So that is two phase locking. It is not going to guarantee for the deadlock. Deadlock इसमें आ सकता है।
अब लॉक आपके कौन कौन से लॉक होते हैं? एक होता है रीड लॉक, एक होता है राइट लॉक. So it means if you want to do a read operation, then we can have for the read lock, एक आपका read lock लग जाएगा. If you want to do the write operation, then we can do the write operation, write lock, or we can say exclusive lock. We can say exclusive lock. So two locks are over here. So 2PL only serial schedule, yes. With 2PL transaction, always lock the data just being read just before every operation. नहीं नहीं नहीं, एक ऑपरेशन आपका ग्रोइंग होगा, धीरे धीरे लॉक लोगे, then we will release a lock. So like this it will go. So first is growing phase, then it is a decreasing phase. It is ऐसा नहीं है कि हर बार आप लॉक लेते रहोगे, no, it is incorrect. So A is right, B is incorrect. A is right, B is incorrect. Deadlock is possible in 2PL 100%. 2PL is not free from deadlock. So D is also right. A, B is not, A is CD. A, C, D is the right answer for this question. A, C, D is the right answer for this question. A relation schema in that we are having person PID and CID. ठीक है, then list of the cities with at least 3 persons reside. At least 3 है. Minimum number of cross product. अगर 3 person है, so P1, P2, P3. मिनिमम कितने लगे क्रॉस प्रोडक्ट? 1, 2. एक क्रॉस प्रोडक्ट, दो क्रॉस प्रोडक्ट, दो कहाँ पे टिक कर दो, खत्म. Which of the following option gives the degree? देखो मान लो कि डिग्री आता है जैसे एक टेबल है, एक स्टूडेंट टेबल है, मैंने कह दिया सर उसके आईडी होगी, नेम होगा, क्लास होगी, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी 3 डिग्री होगी. कितनी डिग्री होगी? 3. क्योंकि 3 एट्रीब्यूट है, सो इट इज द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन स्कीमा, इट इज डिग्री. इसको हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर रिलेशन पी क्यू आर एस टी द फॉलोइंग आर द फंक्शन डिपेंड्स. देखो पी क्यू से आर आ रहा है, पी क्यू से आर फाइंड हो रहा है, एंड क्यू आर से एस आ रहा है. इट मीन्स आई कैन से दैट पी क्यू से आर आ रहा है और आर से एस आ रहा है, एंड आर से टी आ रहा है. सो आई कैन ऑल्सो से दैट टी आ रहा है. सो पी क्यू इज एबल टू आइडेंटिफाई ऑल एट्रीब्यूट्स. तो पी क्यू क्या हो जाएगा? मेरा की हो जाएगा. क्या हो जाएगा? की एट्रीब्यूट, और वी कैन से अ प्राइमरी की, and rest I can say from the attributes I can also find. Now the candidate key of R is PQ. Yes, PQ is my candidate key. And the candidate key is QR. QR candidate नहीं है. देखो QR से क्या क्या आ सकता है? QR से S आ जाएगा, और उसके बाद में R से T आ जाएगा, और T से नहीं आया. So now P is missing. P is missing. So this is not a candidate key. A is right. The total number of super key in R is 16, and the total number of super key in R is 8. Total number of super key. तो दो तो आपकी ये हो जाएंगी, 2 इंटू करना पड़ेगा ना. अब देखो 2 इंटू, यहाँ देखो आपके पास क्या पी और क्यू है. पी और क्यू यहाँ पे क्या? आर एस टी, आर एस, कितने एट्रीब्यूट है? 3 है. तो इट मीन्स 2 रेज टू पावर 3. तो आई कैन से दैट
2 multiplied by 8, 16. A and C will be the right answer for it. A and C will be the right answer for this question. Okay. Now look at another question. अच्छा क्वेश्चन है, गेट CSC 2023 का क्वेश्चन है. A computer science, sorry, consider the following table student in a relation. The primary key is roll number. The primary key of the table is roll number. ठीक है, एक क्वेरी दे दी है. ठीक है, now you need to give the answer in the video comment. ठीक है, तो वीडियो के सेक्शन में दिस होमवर्क फॉर यू, ये क्या आपके लिए होमवर्क है, इतना बहुत है आज के लिए. द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द मोर क्वेश्चंस, सो यू नीड टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इजी क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा, सॉल्व हो जाएगा. इफ यू आर अनेबल टू सॉल्व आई विल सॉल्व फॉर यू. ओके, इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत.